वेल नमस्कार। जैसा हमें पता है कि हमने 10th क्लास का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर शुरू किया हुआ है। एज यू आर अवेयर दैट वी हैव स्टार्टेड द 4th चैप्टर ऑफ 10th क्लास ज्योग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर. Before this lecture we have already discussed few points. Introductory part, then what we mean by agriculture we have discussed, then types of farming, in which intensive subsistence farming, primitive subsistence farming and commercial farming we have discussed. We have discussed the cropping pattern, Kharif, Rabi and Zed. These points we have discussed in the previous lecture. It is advised to you, first go to that lecture. I am giving you the link over here. You just click it, go through that one, then come here. Here we will discuss about, we will start this lecture with the required climatic conditions of several crops. As I told you that we have bifurcated this chapter into three parts. This is the last part of second part, in which we will discuss the important crops, their climatic conditions, how much temperature they need for the growing properly, what percentage of rainfall they need, in what area they are grown. These kind of things we will discuss. See, in the very first lecture of that how to study SST, I have told you that every subject has contained two things. One is fact and the second is concept. This one is the fact. It can be little boring, but questions come from here for the evaluation purpose. तो मैंने उनमें से कुछ क्रॉप्स को लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं। सबसे पहले राइस और वीट, मैं इसका कॉम्बिनेशन बना करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये राइस एंड वीट ये स्टेपल फूड में आते हैं, बेवरेज क्रॉप्स में टी एंड कॉफ़ी आते हैं और फाइबर क्रॉप में कॉटन और जूट आते हैं। इनको हम इस तरह से बाइफरकेट करके करेंगे। राइस के लिए हम देख रहे हैं कि स्टेपल फूड है, बहुत सारे इंडिया के प्रदेश में इसको स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये खरीफ की क्रॉप है, इसकी ग्रोइंग के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको ऑनसेट ऑफ मॉनसून में बोया जाता है। इसके लिए क्लेई सोयल की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर जो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है और जो रेनफॉल है अबाउ 100 सेंटीमीटर इट इज नीडेड. All these kind of climatic condition is very common in our country, specifically northern part. So we will see that in northern plains this rice crop is grown at very large scale, even in northeastern state and coastal plains, because the availability of water and the required climatic condition. This rice crop is grown in these areas. Then we move to the wheat one. It is also a staple food. Maximum of our country people, they are dependent upon wheat for their food requirement. It is a rabi crop. It is grown when the winter is near to beginning, October to December. We have discussed about rabi crop climatic condition in previous lecture. For this one, fertile soil is required. The growth of wheat is dependent upon the fertility of soil. Two kind of climatic condition, temperature is needed for it. One at the time of sowing, growing, and then before harvesting, what kind of temperature is needed for this one? When we grow the seed, 10 to 15 degrees Celsius temperature must be there, and for ripening 25 to 28 degrees Celsius is needed for it. 50 to 75 centimeter rainfall annually is required for Ganga Satluj plain. What it's mean? It's mean the plain area which is drained by these two big rivers. This is formed because of these two rivers. In the soil formation we will discuss, we have already discussed.
Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, Madhya Pradesh, Bihar, and many more. These are the largest growing area of wheat. So these are two staple food we have discussed. Then we move to the tea and coffee. टी एंड कॉफ़ी इज़ ए काइंड ऑफ प्लांटेशन, कमर्शियल फार्मिंग इसके लिए होता है। आसाम और कर्नाटका जो है वहाँ पर इस क्रॉप को बहुत बड़ी मात्रा में बोया जाता है और टी और कॉफ़ी हमारे देश से जो बेस्ट क्वालिटी की है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हम लोग देख लेते हैं। प्लांटेशन है बड़े लार्ज स्केल पे। जब हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग किया था उसमें कमर्शियल फार्मिंग का एक सब पार्ट था प्लांटेशन। व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एट अ वेरी लार्ज एरिया, मॉडर्न इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, गुड मैनेजरियल थिंग्स आर नीडेड। प्लांटेशन एनुअल क्रॉप है ये, राबी और क्रॉप नहीं, पूरे साल के लिए इसको राइपनिंग के लिए चाहिए होता है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल, कॉफ़ी के लिए एलुवियल सॉयल। 10 to 30 degree temperature is required for tea, and then for coffee 23 degree and 28 degree Celsius। जैसा मैंने इसको शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था, ये फैक्ट्स हैं, इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ये याद हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर पर एनम rainfall is required. For coffee 150 to 200 required. Assam and Karnataka major producer of tea, same way Karnataka is the major producer of coffee, along with West Bengal and Kerala for tea, and Tamil Nadu included in coffee plantation crop. Then we comes to the fiber crop. इसको beverage crop बोला जाता है, fiber crop है। फाइबर क्रॉप में दो मुख्य क्रॉप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉटन एंड जूट। कॉटन का और जूट का, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। अक्सर एक नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, दैट इज जूट। तो कॉटन के लिए फाइबर क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है। ब्लैक सोयल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कॉटन के लिए ब्लैक सोयल चाहिए। ब्लैक सोयल की एक क्वालिटी होती है दैट कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन क्रॉप्स। लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नीडेड, 85 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सॉरी दिस वन इज रेनफॉल, हाउ इट कैन बी टेम्परेचर, 85 and 110 centimeter rainfall. Then the area where the black soil is found, when you will see the first chapter, you will find that the area of Maharashtra, Gujarat, a little part of southwest of Madhya Pradesh, these areas are rich in black soil. So in these area the cotton is grown at a very large scale. जूट, यहाँ पर मैंने जूट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जूट के गोल्डन फाइबर के लिए एक स्टोरी है। देखिए, आज हम जूट की प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आते हैं, फर्स्ट नंबर बांग्लादेश का है। पहले हम बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, बिकॉज द बांग्लादेश विच वॉज अर्लियर ईस्टर्न पाकिस्तान was the part of India. Now after independence, when this partition took place, Bangladesh, today's Bangladesh, which was earlier Eastern Pakistan, went away from India. So that's why we stood on the second part. अब देखिए, ये सारा कंसंट्रेशन जो होता है वेस्ट बंगाल में है जूट के प्रोडक्शन का। Now the question arises, why? Because the water requirement is completed by Hooghly River. One thing, Hooghly River is there. Second was nearby area of Uttar Pradesh and Bihar. So labor is found in abundant, easily at cheaper rate. Next one is the climatic condition which are required for jute, that is found there. तो ये मैंने आपको क्रॉप्स और उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बताई हैं। इसके इसी तरह से आपको मेज़ की, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स की, ये एक शुगर केन, थोरो 1 ईयर पूरा लगता है शुगर केन की क्रॉप्स के लिए।
उत्तर प्रदेश को बाउल ऑफ शुगर केन कहा जाता है। जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम शुगर केन इंडस्ट्री का वो उत्तर प्रदेश में है। दैट इज अ सेपरेट इशू दैट इज मूविंग नाउ टूवर्ड्स महाराष्ट्र और इन साउथ। तो ये जो सारी क्रॉप्स हैं इनके बारे में भी आपको एक इस तरह से चार्ट बनाना है। द थिंग्स वेरी मच क्लियर। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेपल फूड, beverage crop and fiber crop is very much important. You just go through it. Afterwards, the last part of this chapter we will discuss, that is technical and institutional reforms. What steps taken by the government for the improvising the agriculture condition. Second thing is how to grow the maximum crops from the same land. What kind of step has been taken? What was green revolution? ये चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Okay, in the last part of this chapter agriculture of 10th class we will discuss three things. Very first is green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति 1960s में इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसकी भी एक हिस्ट्री है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट था जो एग्रीकल्चर पर काम किया करते थे, रिसर्च किया करते थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग। उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट था, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उस कंसेप्ट को प्रमोट किया जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। सबसे पहले इसको मैक्सिको में, जो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट का एक देश है मैक्सिको, वहाँ पर इस कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन को इस्तेमाल किया गया था। उसकी जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, सबको इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले मैक्सिको में, और मैक्सिको में इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिले थे। अब आ जाते हैं इंडिया पे। देखिए, व्हेन वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, आवर दादन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्हाट ही डिड, ही क्लोज द इकोनॉमी। उन्होंने अपने मार्केट को, बाजार को बंद कर दिया, केवल एसेंशियल गुड्स को ही अंदर आने की परमिशन थी। उसके पीछे कारण था कि हमें अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाना था, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना था। तो हमने अपने जो मार्केट है वो बाहर के लोगों के लिए बंद कर दी, लेकिन एसेंशियल थिंग्स के लिए अपनी मार्केट को खुला रखा। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता थी उसमें था एक फूड मटेरियल, खास करके वीट। हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, सेल्फ रिलायंट नहीं थे, तो अमेरिका से हम लोग, यूएसए से वीट को इंपोर्ट किया करते थे। एक एग्रीमेंट था PL 480, मैंने मेंशन किया हुआ है। उस PL 480 के तहत हम लोग वीट को, फूड मटेरियल को, फूड स्टफ को अमेरिका से इंपोर्ट किया करते थे। अमेरिका वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू सेटिस्फाइड आवर फूड रिक्वायरमेंट। आवर कंट्री इज़ अ वेरी बिग कंट्री, हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं थी, इसीलिए हम लोग उनसे इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया, बहुत सारी अनवांटेड पॉलिसीज़ को हम पर थोप दिया, साथ में हमें बहुत पुअर क्वालिटी का वीट देना शुरू कर दिया। दिस वॉज द टाइम व्हेन स्वामीनाथन, you must heard the name, in 1960s came forward and given the advice to the government to initiate the green revolution in India, and that was the decade when the green revolution started in India. Under green revolution certain measures were followed. HYV seed were used very first time. High yield variety. अब high yield variety क्या होता है? जनरली आपने बालियां देखी होंगी गेहूं की, उसमें इस तरह से कुछ दाने होते हैं, लेकिन HYV सीड को अगर इस्तेमाल करोगे तो उसमें ज़्यादा गेहूं के दाने होंगे। यानी कि सेम लैंड से, अगर 1 एकड़ लैंड से 1300 kg हम लोग वीट ले रहे हैं,
तो HYV सीड इस्तेमाल करने के बाद हम उससे 3200 kg वीट हमें मिलता है। तो HYV सीड वर यूज्ड, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन वाज adopted because we were dependent upon monsoon, and monsoon delay or monsoon failure you are aware about in our country is a very common phenomena। तो इसलिए इरिगेशन मेथड्स को इस्तेमाल किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए, किसानों को लोन दिए गए, इंश्योर्ड किया गया, और नटशेल में आज हम वीट के प्रोडक्शन में सरप्लस हैं। 3-4-5 साल के लिए हमारे पास स्टोरेज है, तो हम कह सकते हैं द क्रेडिट गोज टू अ ग्रीन रेवोल्यूशन। हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वाई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, एंड what steps were taken to improve the production of the same land. Then we move to the next part, that is reforms, technical and institutional reform। क्या क्या इनिशिएट किए गए हमारी कंट्री में? एक तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, इसको भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। रशियन रेवोल्यूशन में, रशिया की हिस्ट्री में आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड को इंट्रोड्यूस किया था। बहुत सारे देशों में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड क्या होता है? देखिए, एक तो हमारे पास 1-2 एकड़ लैंड का टुकड़ा है, हम सभी अलग अलग उस पर खेती कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी गांव में 25 फार्मर्स हैं, सबके पास 1-1, 2-2 एकड़ ऑफ लैंड है, अलग अलग खेती करते हैं, अलग अलग लेबर करते हैं। लेकिन अगर कलेक्टिवाइजेशन ऑफ हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाए, स्टेट के द्वारा फंडिंग हो जाए, तो क्या होगा? उस 50 एकड़ लैंड पर कलेक्टिवली खेती होगी, उसमें लेबर विलिंगली डे बाय डे उसको सेट करके कि आज 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन ये काम करेंगे, इस तरह से। तो उसमें इनपुट कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड का मेथड इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे इलाकों में फार्मर्स को कन्विंस किया गया कि आप इस तरह से खेती करें, जिसका फ़ायदा हमें मिला। तो ये एक रिफॉर्म था। एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, देखिए 8th क्लास में इस पूरे चैप्टर को बताया गया है। जमींदारी सिस्टम क्या होता है? यस, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक मीडियोकर पावर को खड़ा किया, जमींदार, उसको बहुत सारी लैंड होल्डिंग्स दे दी और उसको ये काम दिया गया कि आप इन सब पर फार्मर से बेगार करवाएंगे, काम करवाएंगे, और उनमें से जो उपज आपके पास आएगी एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें टैक्स के रूप में आप पे करेंगे। तो बड़े बड़े जमींदार एक पावर के रूप में उभरे, किसानों का शोषण होता था, और जब वो उनसे उधार लेते थे किसान जमींदारों से और उसको पे नहीं कर पाते थे, तो उस लैंड को भी एक्वायर कर लिया जाता था। तो जमींदार becomes the very big land holders, and the government was satisfied with them because they were paying the continuously tax to the British government. When India got its independence, it was realized by the Indian government that maximum of the people of India do not have land. They are landless. Only few people. Complete data is given in the 8th class कि किस तरह से लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गया कि कम आपके पास 5 फैमिली मेंबर हैं तो आप केवल 10 to 27 फर्टाइल लैंड रख सकते हैं, 35 to 50 एकड़ ऑफ बैरन लैंड रख सकते हैं, और उसको डिस्ट्रीब्यूट, और बाकी की लैंड को एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया लैंडलेस लोगों के साथ। हालांकि उसमें भी बहुत सारे लूप होल थे, क्योंकि जो बड़े किसान थे उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के, रिलेटिव्स के, यहाँ तक कि सर्वेंट्स के नाम भी ज़मीन करा दी। 1975 यू जस्ट आस्क टू योर एल्डर्स, you will come to know how this system was monopolized, or you can say disturbed, by the people who were having the big land holdings. System was failed, although many of the farmers get land 1 acre or 2 acre, पूरा सिस्टम है इसमें। और उस जमींदारी सिस्टम को, जिसकी वजह से शोषण होता था, एबोलिश कर दिया गया इंडिया से। नाउ द जमींदारी सिस्टम इज नॉट सस्टेन इन इंडिया। देन किसान क्रेडिट कार्ड, यू मस्ट हर्ड किसान क्रेडिट कार्ड, कि जिस किसान के पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में लैंड है तो उसको गवर्नमेंट मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई,
बहुत सारे रिसर्च सेंटर बनाए गए। आप लोगों ने हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, इन रिसर्च सेंटर्स में रिसर्च की गई मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में, कि किस तरह से एक लैंड से मैक्सिमम क्रॉप्स ली जाए जिससे लैंड की फर्टिलिटी पर भी इम्पैक्ट ना हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। यह भी एक रिफॉर्म था। वेदर बुलेटिन आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में बताया जाता है कि आज इतनी बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी, गरज का छींटे पड़ेंगे, लाइक दिस। तो वेदर बुलेटिन, इससे किसानों को बड़ा हेल्प मिला कि किस समय फसल को बोया जाएगा, कब उसको काटा जाएगा। इस तरह से उस वेदर बुलेटिन का किसानों को बड़ा फ़ायदा मिला। ये भी एक रिफॉर्म था, एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट था। किसानों को कम इंटरेस्ट पर लोन दिए गए कि वो अपनी खेती के लिए इनपुट लगा सकें, आसानी से उन्हें इनपुट मिले। जमींदारों से या बड़े बिग लैंड होल्डर से, मनी लेंडर से पैसा उधार लेकर के वो मनी ट्रैप, डेब्ट ट्रैप में ना फंसे। गवर्नमेंट ने उन्हें लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इंश्योरेंस दिया, किसी भी प्रकार का डिज़ास्टर होता है, क्रॉप फेलियर होता है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, तो उसके लिए उसको भी इंश्योर्ड किया गया, इंश्योरेंस दिया गया। ये सारे रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए इंडिया में। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया। देन दिस इज द लास्ट पार्ट, what is the impact of globalization over India? Globalization, we have already discussed that. Globalization means interconnection, interdependence of economy of different countries. They make the foreign investment, they do the trade with each other easily. That is globalization. अब globalization का इंडिया पर इम्पैक्ट जानने के लिए थोड़ी सी हम हिस्ट्री पर नज़र डाल लेते हैं कि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले से हो रहा है। देखिए, आप लोगों ने वास्को डी गामा का नाम सुना होगा, जिसके शब्दों से, जिसके बारे में ये कहा जाता है, हु फाउंड इंडिया। इंडिया फाउंड नहीं किया उसने, यूरोप से इंडिया का रास्ता फाउंड किया था यूरोपियंस के लिए, क्योंकि इंडिया तो बहुत पुराना कंट्री है, बहुत हमारा बढ़िया और एंशियंट कल्चर है। वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया। तो वास्को डी गामा हैव नॉट फाउंड आवर इंडिया, बेसिकली ही सर्च द ट्रेड रूट फॉर यूरोपियन कंट्रीज। ही वॉज ए पुर्तगीज। वो जब केरला के कालीकट पर आया था, वापसी में जब वो वापस गया अपनी समुद्री यात्रा से भारत में कुछ समय रहने के बाद, तो यू शुड बी सरप्राइज टू नो अपने साथ वो क्या लेकर के गया। पूरे अपने जहाज को काली मिर्च से भर करके लेकर के गया, और जान करके आश्चर्य होगा कि जितना भी उसका पैसा लगा था इस समुद्री इस वोएज में, उससे 120 गुना उसको फायदा हुआ। व्हाट इट्स मीन, द यूरोपियंस वर नॉट अवेयर अबाउट स्पाइसेस, वी इंट्रोड्यूस्ड टू दैम द स्पाइसेस। तो ये एक ट्रेड रिलेशन बना था, स्पाइसेस को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, कॉटन जो हमारे, या कॉटन के बने हुए जो हमारे कपड़े होते थे, इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। वी वर द सुपीरियर इन गारमेंट ट्रेड इन एंशिएंट टाइम। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई इंग्लैंड में, मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे जो सिटी सामने आए जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल एस्टेब्लिश हुई, तो उनको फीड करने के लिए हमारा जो कॉटन का व्यापार था उसको स्टॉप कर दिया गया, रोक दिया गया, और हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाया जाने लगा, रॉ कॉटन, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को फीड कर सकें। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का हम एक पार्ट देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा कि 1917 में चंपारण में जो फोर्स्ड लेबर करवाई जा रही थी, फोर्स्ड एग्रीकल्चर, फोर्स्ड प्लांटेशन ऑफ इंडिगो करवाया जा रहा था। इंडिगो वहाँ के इंग्लैंड के कपड़ों को कलर करने के लिए, उसको रोका गया। तो ये था पुराने समय में किस तरह से। अब मॉडर्न समय में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। तो हम देखते हैं कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट मिल गई, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया। हालांकि वहाँ पर कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर के देशों में एग्रीकल्चर के लिए, खास करके यूरोपियन देशों में
एग्रीकल्चर को सब्सिडाइड रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत भारी सब्सिडी दी जाती है, तो उनकी जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, क्रॉप की, हमारी क्रॉप की उससे ज़्यादा होती है। इसलिए हमें थोड़ा स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है वर्ल्ड मार्केट में। अदरवाइज वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। आवर फार्मर्स गॉट द एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे फेयर, एग्रीकल्चर फेयर, मेले लगाए जाते हैं जिसमें मॉडर्न टेक्निक के बारे में बात किया जाता है। तो हमारे फार्मर्स वहाँ पर जाते हैं और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि मॉडर्न टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं, बहुत सारी फॉरेन में रिसर्चेज होती हैं कि किस तरह से सेम लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम उन मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं, उन लेटेस्ट फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो रिसर्चेज हो रही हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की, कि किस तरह से अलग अलग किस्म की हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, एक बार में एक साल में लैंड से कितनी ज़्यादा फसलें ली जा सकती हैं। मतलब इस तरह की सभी नॉलेज हमें ग्लोबलाइजेशन से मिल रही है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, हालांकि उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के भी नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं कि हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से। जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको हम लूज़ कर रहे हैं हमारी सोइल की। उसके अलावा वाटर पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वही केमिकल बहती हुई नदियों में जा रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, बट वी कैन से it's a very positive impact of globalization on India. This your chapter, and I'm quite sure the chapter is quite clear to you. Still, if you are having problem, so you can write in comment box. I will try to clarify all your doubts. You just go through this chapter, read the book once. As I told you, within 48 hours you have to go through the book. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।